Good morning, all of you. Am I audible? Slide visible? So shall we start the class? So today's topic is white matter of cerebrum and corpus callosum. Okay, so first we'll see what is the white matter of cerebrum. So white matter of cerebrum, it is the compact bundle of number of myelinated nerve fibers. White matter of the cerebrum, it is a compact mass of a vast number of myelinated nerve fibers. जो ग्रे मैटर से एक्सोनल फाइबर्स निकल रहे हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? व्हाइट मैटर. अब ये जो व्हाइट मैटर होते हैं इनको डिपेंडिंग अपॉन द कनेक्शन वी डिवाइड दिस व्हाइट मैटर इनटू 3 टाइप्स: एसोसिएशन फाइबर्स, कमिश्नर फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स. राइट? So association fibers means they connect the two region of cerebral hemisphere. ठीक है, ये जो हम टाइप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस वाइट मैटर बंडल दे कनेक्ट दी CNS टू द अदर पार्ट ऑफ CNS. ठीक है, लाइक cerebral cortex with the brain stem, subcortical centers, right, red nucleus, substantia nigra, basal ganglia, then spinal cord. ठीक है, then some fibers connect the different part of the same cerebral hemisphere. इको हो रहा है क्या? आवाज क्लियर है? Am I audible? इको तो नहीं हो रहा है ना? क्लियर है आवाज? क्योंकि मुझे आवाज आ रही है तो ओके. आवाज कट रही, सबको आवाज कट रही है? Okay, so first we'll see the association fibers. 3 type of fibers are there: commissure fiber, association fiber and projection fiber. ठीक है, see in this diagram, this, see in blue color, this white matter bundle connects the two part of cerebral hemisphere within the same hemisphere. ठीक है, ये कोरोनल सेक्शन लिया है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. तो ये जो फाइबर्स है ये सेम हेमिस्फीयर में दो पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे, दैट इज एसोसिएशन फाइबर्स. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ एंड कनेक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट एंड लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स. सी हियर प्रोजेक्शन फाइबर्स. प्रोजेक्शन फाइबर्स दे आर कनेक्टिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विद अदर पार्ट्स ऑफ central nervous system. Cerebral cortex with the other parts like subcortical parts like brain stem or spinal cord.
तो ये जो फाइबर्स है जो हमारे ट्रैक्स बनाते हैं, सेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स, ये है प्रोजेक्शन फाइबर्स, ये होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स. देन the third type is commissure fiber. These are commissure fibers. These are connecting the identical part of two cerebral hemisphere. Suppose यहाँ पे frontal pole है, तो frontal pole of right hemisphere connected with the frontal pole of frontal lobe of left cerebral hemisphere. ये जो fibers है which are connecting the identical part of two cerebral hemisphere, these fibers are called commissure fibers. ठीक है, उसका एग्जाम्पल है कॉर्पस कॉलोजम. एग्जाम्पल इज कॉर्पस कैलोजम. ठीक है, तो फर्स्ट विल सी दी एसोसिएशन फाइबर्स. Association fibers are intrahemispheric fibers. Association fibers are intrahemispheric fiber. मतलब वो एक ही हेमिस्फीयर में दो पार्ट को कनेक्ट करेंगे. Now see here, this fiber connecting this frontal lobe with this occipital and temporal lobe. ठीक है, ये जो बंडल ऑफ फाइबर्स है फ्रंटो ऑक्सीपिटल बंडल, फ्रंटो ऑक्सीपिटल बंडल कनेक्टिंग दी फ्रंटल लोब विद ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब. ये देखो, और इनकी लेंथ कैसी है, दे आर लॉन्गर, सो दे आर लॉन्ग एसोसिएशन बंडल. ठीक है, these are long association bundle. Then now we'll see the one by one. The association fibers, these interconnect the different region of cerebral cortex in the same hemisphere. Association fibers interconnecting the different parts of the same hemisphere. ठीक है, these are intrahemispheric fibers. They are two types, short and long. Short, which interconnect the adjacent gyri. Now see here, these are uncinate fasciculus. Uncinate fasciculus, which are interconnect the adjacent gyri. ये जो elevation है, ये gyrus है, ये दो gyra है, और इनके बीच में ये है sulcus. ठीक है, तो ये एक गायरस और ये एक गायरस, ये जिन फाइबर्स से कनेक्टेड है, these are short association fibers. ठीक है, this gyrus and this gyrus, these are connected by short association fibers. Example is uncinate fasciculus. Uncinate fasciculus. Sorry, they are also called arcuate fasciculus. अच्छा, आवाज के 1 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लो, देखते हैं एक बार. आवाज नहीं आ रही है, एक बार देखते हैं फिर से.
अब आवाज आ रही है? देखो हमने क्या क्या देखा, पहले देखा हमने व्हाइट मैटर, आवाज आ रही है आप लोगों को? We have seen the definition of white matter. White matter of the cerebrum is a compact mass of vast number of myelinated nerve fibers. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? अब बताओ कट रही है कि नहीं कट रही है? So we have seen the definition of white matter. The white matter of cerebrum, it is a compact mass of vast number of myelinated nerve fibers which are connecting the different parts of cerebral cortex either within the same hemisphere. आवाज कट रही है कि नहीं वो आप बताइए। और the cerebral cortex with these subcortical centers, brainstem and spinal cord. ठीक है, तो अगर कटे आगे से तो बता दो, ठीक है? तो shall we proceed? So depending upon their connection, there are three types of white matter fibers: association fibers, commissure fiber and projection fibers. ठीक है? The example of association fiber: uncinate fasciculus and cingulum. Uncinate fasciculus and cingulum. Commissure fiber: corpus callosum. And projection fiber का example होता है internal capsule. Internal capsule and ठीक है? Now see here, ये एक cerebral hemisphere है, ये दूसरा है, suppose this one is right and this one is left, ठीक है? cerebral hemisphere हो गया, इसका हमने coronal section लिया है, इसका हमने coronal section लिया है, तो ये हो गया, ये जो cerebral hemisphere का ये पार्ट है and this part, these two parts are identical, ठीक है? सपोज दो फ्रंटल लोब को अगर फाइबर्स कनेक्ट करेंगे, दो फ्रंटल लोब के आइडेंटिकल पार्ट को अगर फाइबर्स कनेक्ट करते हैं, सपोज फ्रंटल लोब के ऑर्बिटल कॉर्टेक्स, एक राइट फ्रंटल लोब का ऑर्बिटल कॉर्टेक्स कनेक्टेड विद द ऑर्बिटल कॉर्टेक्स ऑफ लेफ्ट फ्रंटल लोब, ठीक है? तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे, इनको हम क्या कहते हैं? कमिश्यर फाइबर्स. These fibers are called commissure fibers. और अगर ये कॉर्टेक्स को लोअर डाउन, यहाँ पे ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, रेड न्यूक्लियस, बेजल न्यूक्लिया, ठीक है, या कॉर्पस, दिस बेजल न्यूक्लिया, अगर इनको कनेक्ट करते हैं, सब्सटेंशिया निग्रिया, इनको अगर जो फाइबर्स कनेक्ट करते हैं, लाइक कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, कॉर्टिको रूबरल फाइबर्स, कॉर्टिको नाइग्रल फाइबर्स और कॉर्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स, ये जो फाइबर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन फाइबर्स, ठीक है? इनको हम कहेंगे प्रोजेक्शन फाइबर्स, ठीक है? अब हमारा क्या हम क्या पढ़ रहे थे अभी? एसोसिएशन फाइबर्स. एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं? ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है,
ये क्या हो गया, सल्का, दीज आर सल्का, ये डिप्रेशन, यहाँ पे सल्का और ये एलिवेशन कायरा। ठीक है, तो अगर ये दो गायरस को यहाँ के यहाँ अगर कनेक्ट हो रहा है, अगर वाइट मैटर इस गायरस को इस गायरस से कनेक्ट कर रहा है विद इन द सेम हेमिस्फीयर, ठीक है, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट है, तो लेफ्ट के अंदर ही अगर कनेक्शन हो रहा है दो गायरस के बीच में, जैसे यहाँ दिख रहा है, around the hooking around this sulcus, so these fibers are called association fibers। यहाँ देखो, यहाँ पे कनेक्शन कैसे दो हेमिस्फीयर के बीच में है, दैट इज इंटर हेमिस्फीयर, और यहाँ पे सेम हेमिस्फीयर में कनेक्शन है, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रा हेमिस्फीयर। समझ में आया? इंटर मतलब दो हेमिस्फीयर के बीच का कनेक्शन बट आइडेंटिकल पार्ट, और इंटर हेमिस्फीयर मतलब, इंट्रा हेमिस्फीयर मतलब विद इन द सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो अगर गायराएं कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हें क्या कहते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ दिस फाइबर्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। तो वो जो हमने एग्जाम्पल देखा था अभी, पहले जो एग्जाम्पल देखा था, ये देखो, दिस वाइट मैटर बंडल हुकिंग अराउंड दी सल्कस, ये जो सल्कस है इसके अराउंड ये जो एडजेसेंट गायरा है इनको जो कनेक्ट कर रहा है दिस, ठीक है, उनका एरिया कैसा है, नियर बाय, तो ये जो इनका लेंथ कैसा है, शॉर्ट, तो दिस आर शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स एंड दे आर फॉर्मिंग अ आर्क, दे आर फॉर्मिंग एन arc, so they are called arcuate fibers, they are called arcuate fibers। ठीक है, short association fibers are also called arcuate fibers। अब long association fibers के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सल्कस के अराउंड ये शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स। अब ये जो नीचे दिखाया है डार्क ब्लू में, ये सारे क्या है, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स, उनकी लेंथ ज्यादा है। तो उनके एग्जाम्पल में आएगा अनसिनेट फैसिकुलस। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आवाज आ रही है सही से? आज का टॉपिक बड़ा है बच्चों, चलो फटाफट जवाब दो। So long association fibers, first example is uncinate fasciculus. Uncinate fasciculus which connects the motor speech area and orbital cortex of frontal lobe with cortex of temporal pole. ठीक है, this is lateral sulcus, यहाँ पे lateral sulcus होता है। ये सेक्शन कैसा है, हमने दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अलग किया है, मिड सजाइटल सेक्शन, मिड सजाइटल सेक्शन है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हमने अलग किया है, और हम ये मीडियल सरफेस देख रहे हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस देख रहे हैं, ये हमें दिखेगा कॉर्पस कैलोजम, ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन इज कॉर्पस कैलोजम, दिस इज अंकस, ये हो गया हमारा टेम्पोरल पोल, ये फ्रंटल पोल, ये पैराइटल, ये ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अनसिनेट फैसिकुलस क्या करता है, यहाँ पे जो मोटर स्पीच एरिया होगा, मोटर स्पीच एरिया और ऑर्बिटल कॉर्टेक्स ऑफ फ्रंटल लोब, इसको किससे कनेक्ट कर रहा है, टेम्पोरल पोल के कॉर्टेक्स से। सो दिस इज अनसिनेट फैसिकुलस, दिस इज अनसिनेट फैसिकुलस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज सिंगुलम, दिस वन इज सिंगुलम, ये देखो कॉर्पस कैलोजम के अराउंड ये जो फाइबर्स है, दिस आर सिंगुलम। ठीक है, ये क्या करेंगे, दिस एक्सटेंड फ्रॉम द पैराटर्मिनल गायरस, ये हमने लैमिना टर्मिनालिस देखा होगा आपने लास्ट क्लास में, तो लैमिना टर्मिनालिस के अराउंड यहाँ पे गायरस होता है, पैराटर्मिनल गायरस, यहाँ से ये फाइबर्स जाएंगे टुवर्ड्स द अंकस। ठीक है, दे फॉर्म ऑलमोस्ट अ सर्कल लाइक गर्डर, सो दे आर कॉल्ड सिंगुलम। यहाँ पे सिंगुलेट गायरस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंडल्स ऑफ बंडल है वाइट फाइबर्स का, दिस फाइबर इज कॉल्ड सिंगुलम। कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, अंकस को
पैराटर्मिनल गायरस, ठीक है। देन फ्रंटो ऑक्सीपिटल, फ्रंटो ऑक्सीपिटल इज दिस, इट बिगिन फ्रॉम द फ्रंटल पोल, ये फ्रंटल लोब है, यहाँ से फ्रंटल पोल रन्स बैकवर्ड, here runs backward, and here it radiate into the occipital and temporal lobe, occipital and temporal lobe, ठीक है। तो इनका इसका नाम क्या है, फ्रंटो ऑक्सीपिटल बंडल। फ्रंटल से लेके ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल तक जा रहे हैं फाइबर्स, कनेक्ट कर रहे हैं दो कॉर्टेक्स को, तो दीज आर कॉल्ड फ्रंटो ऑक्सीपिटल बंडल, ठीक है, फ्रंटो ऑक्सीपिटल बंडल। देन यहाँ पे देखो इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल कहाँ से कहाँ होना चाहिए, दिस इज ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है ये। तो यहाँ होता है विजुअल एसोसिएशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया यहाँ से लेके फ्रंटल लोब तक, ये फाइबर्स इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल किसको कनेक्ट कर रहे हैं, दिस विजुअल एसोसिएशन एरिया टू द फ्रंटल लोब, सॉरी टू दी टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये हो गया इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल बंडल। देन कमीशर फाइबर्स, कमीशर फाइबर्स, ठीक है, एसोसिएशन फाइबर्स हो गए, तीन टाइप के फाइबर्स होते हैं, एसोसिएशन, कमीशरल फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स। प्रोजेक्शन फाइबर्स की अलग से क्लास होगी, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी 2 दिनों के बाद जो क्लास होगी, इंटरनल कैप्सूल, द इंटरनल कैप्सूल है एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर्स, वो हम प्रोजेक्शन फाइबर्स उस क्लास में पढ़ेंगे। एसोसिएशन फाइबर्स हो गए, अब कमीशरल फाइबर्स। कमीशरल फाइबर्स इंटरकनेक्ट दी आइडेंटिकल कॉर्टिकल एरियाज ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सो दिस बंडल्स ऑफ फाइबर्स आर कॉल्ड कमीशर, these are called commissure, fibers are commissural fibers and this fibers are called commissures, ठीक है। एग्जाम्पल होगा कॉर्पस कैलोजम, एंटीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, हिप्पोकैम्पल कमीशर एंड हैबिनुलर कमीशर, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम, एंटीरियर, पोस्टीरियर कमीशर, हिप्पोकैम्पल कमीशर एंड हैबिनुलर कमीशर, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। अगेन ये जो हमने देखा था मिड सजाइटल सेक्शन, जिसमें कॉर्पस कैलोजम दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। डायग्राम देखो, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट, तो यहाँ पे दिस इज कॉर्पस कैलोजम, इट इज लैमिना टर्मिनालिस, यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम के नीचे ये होता है फॉर्निक्स, दिस वन इज फॉर्निक्स, ये क्या होता है हम देखते हैं थोड़ी देर में, दिस वन इज फॉर्निक्स, ठीक है। फॉर्निक्स और कॉर्पस कैलोजम के बीच में यहाँ है सेप्टम पेलुसिडम, दिस वन इज सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है। सेप्टम, सेप्टा, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर, ठीक है, थिन शीट ऑफ व्हाइट एंड ग्रे मैटर सेपरेटिंग द टू, किसको सेपरेट कर रहा है ये, सेप्टम पेलुसिडम, देन यहाँ पे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हियर मैमिलरी बॉडी, ठीक है, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, देन पोस्टीरियरली सी हियर दिस इज pineal gland, this pineal gland, this one is superior stalk of pineal gland and this one is inferior stalk of pineal gland। आपने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ा था, उसमें रिसेस आ रही है, पीनियल रिसेस इन दो स्टॉक के बीच में, तो पीनियल ग्लैंड इसके ऊपर सुपीरियर स्टॉक और दिस वन इज इंफीरियर स्टॉक, ठीक है। सो नाउ दिस इज कॉर्पस कैलोजम, एग्जाम्पल ऑफ कमीशरल फाइबर, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम, इट इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन कनेक्टिंग द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये कौन सा पार्ट कनेक्ट करेंगे, नियोकॉर्टेक्स,
neocortex of the two side. ठीक है, it is large, it is 10 centimeter long. ठीक है, and it connects all the part of neocortex of two cerebral hemisphere except for the lower and anterior part of this whole neocortex, except lower and anterior part of temporal lobe, which are connected by the anterior commissure. This part, it is connected by the anterior commissure, lower and anterior part of temporal lobes. ठीक है, और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं डायग्राम में अगले. So corpus callosum, it interconnects the two identical areas of two cerebral hemisphere. ठीक है, this is commissural fiber. It connects the neocortex of two cerebral hemisphere. It is large, it is 10 centimeter long, and it connects all the parts of neocortex except anterior and lower part of temporal lobe, which is connected by anterior commissure. ठीक है, so it is a great mediator. दो हेमिस्फीयर को ये जोड़ के रखता है. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन होगा दैट इज कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन. And these fibers, these commissure fibers जो होते हैं, these are essential for the interhemispheric transfer of information. These are essential for the interhemispheric transfer of information, for bilateral responses and learning process. ठीक है, commissure fibers जो होगा उसका function क्या है? Interhemispheric transfer of information for bilateral responses and learning process. ठीक है, so now example पहले हम देखते हैं corpus callosum. This is frontal lobe, this is temporal lobe, और यहाँ होना चाहिए parietal lobe. तो जब हम mid sagittal section लेते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है corpus callosum. This one is corpus callosum. ठीक है, now this corpus callosum, it is she-shaped mass of white fiber on the medial surface of cerebral hemisphere. It has rostrum. This anterior part is called, this part is called rostrum. जहाँ ये bend हो रहा है that is genu. This one is body and this posterior hanging part is splenium. कॉर्पस कैलोसम के पार्ट कौन से हो गए? दिस वन इज रोस्ट्रम, दिस इज जेन्यू, दिस इज बॉडी एंड दिस इज स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, सो द फ्रंटल, दिस जेन्यू, इट्स एंटीरियर एंड दिस वन इज, इट लाइज 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंटल पोल. And this posterior splenium, it lies 6 centimeter in front of occipital pole. ठीक है, तो इसका ये फ्रंटल पोल और जेन्यू का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर. स्प्लीनियम और दिस ऑक्सीपिटल पोल का डिस्टेंस होगा 6 सेंटीमीटर. सो एंटीरियर वन इज नियरर देन द पोस्टीरियर वन. ठीक है, so this is superior surface of corpus callosum and this is inferior surface of corpus callosum. So now see here, from the inferior surface of corpus callosum up to the fornix. ये क्या है? fornix. अच्छा, पहले हम ये देखेंगे कि fornix क्या होता है. ठीक है, fornix पता है आप लोगों को क्या होता है? Fornix is a type of projection fiber. See here, आपने हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पस देखा होगा, हिप्पोकैम्पस गायरस. तो
हिप्पोकैम्पस गायरस से जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं, दे फॉर्म अ फर्स्ट फॉर्म दे फिब्रिए, they then form the columns of fornix, columns or crura of fornix. This crura then join and form body of fornix. Anteriorly this body then again separated into columns of fornix. ठीक है, these columns then relay into the mammillary bodies. तो ये फॉर्निक्स क्या करता है, प्रोजेक्शन फाइबर है, ये क्या कनेक्ट करता है, हिप्पोकैम्पस विद द मैमिलरी बॉडी, हिप्पोकैम्पल गायरस विद द मैमिलरी बॉडी, ये जो कनेक्शन है दिस इज कॉल्ड फॉर्निक्स. इट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर, एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर. ठीक है, ठीक है. तो पार्ट कौन से हो गए, हिप्पोकैम्पस से जो व्हाइट मैटर निकलता है, दैट जॉइंस एंड फॉर्म दिस बंडल ऑफ व्हाइट मैटर, फर्स्ट फॉर्म पोस्टीरियर कॉलम्स ऑफ फॉर्निक्स और आल्सो कॉल्ड क्रूरा ऑफ फॉर्निक्स. कुछ बुक्स में क्रूरा दिया होगा, कुछ बुक्स में पोस्टीरियर कॉलम दिया होगा. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर कॉलम बने. अब ये पोस्टीरियर कॉलम जुड़ के क्या बना रहा है, बॉडी. दिस बॉडी देन एंटीरियरली सेपरेटेड इनटू अगेन टू कॉलम्स, एंटीरियर कॉलम्स. दिस एंटीरियर कॉलम्स देन एंड इनटू द मैमिलरी बॉडीज. ठीक है, तो इस तरह से ये हिप्पोकैम्पस को मैमिलरी बॉडी से कनेक्ट करेंगे. दिस प्रोजेक्शन फाइबर्स आर कॉल्ड फॉर्निक्स. अब ये जो दो कॉलम्स होते हैं पोस्टीरियर कॉलम्स, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय सम फाइबर्स. ये जो दो पोस्टीरियर कॉलम्स है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है थ्रू कमीशर ऑफ फॉर्निक्स कॉल्ड हिप्पोकैम्पल कमीशर. जो पोस्टीरियर कॉलम्स है, ये एक दूसरे के साथ जिन फाइबर्स जिन व्हाइट मैटर बंडल से कनेक्टेड है, उनको कहते हैं हिप्पोकैम्पल कमीशर, हिप्पोकैम्पल कमीशर. ठीक है, चलो ये इतनी सारी चीजें पता हुई. अब हम इसको सिस्टमेटिकली देखते हैं. तो हमने देखा यहाँ पे हिप्पोकैम्पस से ये आर्च फाइबर्स है, ये आगे आ रहे हैं एंटीरियरली, और यहाँ पे मैमिलरी बॉडीज होगी, वहाँ पे कनेक्ट हो रहे. दिस फाइबर्स आर, दिस प्रोजेक्शन फाइबर्स आर फॉर्निक्स. ये कमीशर फाइबर्स जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहे, दिस आर कॉर्पस कैलोजम. तो ये फॉर्निक्स और कॉर्पस कैलोजम के बीच में थिन शीट ऑफ नर्वस टिश्यू, थिन शीट ऑफ नर्वस टिश्यू जिसमें ग्रे मैटर भी है और व्हाइट मैटर भी है, उसको हम कहते हैं सेप्टम पेलुसिडम, सेप्टम पेलुसिडम. ठीक है, यहाँ तक. अभी जो कॉर्पस कैलोजम है, इसके पार्ट्स होते हैं. एक तो होगा बॉडी, जो मेन ट्रंक फॉर्म हो रहा है, बॉडी. एंटीरियरली जहाँ ये बेंड हो रहा है उसको कहते हैं जेन्यू. और ये जो आगे आएगा, द क्रेनियल एंड, जो सबसे ऊपर वाला एंड होगा, वो होगा रोस्ट्रम. ठीक है, पहले ये ऐसे सीधा सीधा होना चाहिए. जब फोल्डिंग्स हुई है, जब ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ टीलेंसेफेलॉन का, जब ये फोल्डिंग्स हुई, तो ये रोस्ट्रम आगे से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऐसे फोल्ड होगा. ठीक है, तो रोस्ट्रम इज हियर, दिस इज जेन्यू, दिस इज बॉडी, दिस वन, दिस पोस्टीरियरली हैंगिंग पार्ट इज स्प्लीनियम, दिस वन इज स्प्लीनियम. ठीक है, तो पार्ट्स हो गए. नाउ ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, एंड दिस इज सुपीरियर व्यू. हमने हॉरिजॉन्टली ब्रेन को कट करके हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, ये फ्रंटल पोल, ये ऑक्सीपिटल पोल, ये पैराइटल. ठीक है, तो अब देखो, दीज आर दी फाइबर्स, ये फाइबर्स दिख रहे हैं. दो पैराइटल लोब्स को कनेक्ट करेंगे दिस बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम. फ्रंटल लोब को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज जेन्यू, दिस इज बॉडी, एंड दिस इज स्प्लीनियम. कॉर्पस कैलोजम जो देखा था हमने, तो ये दिस इज बॉडी, सॉरी दिस इज बॉडी, दिस इज जेन्यू, एंड दिस वन इज स्प्लीनियम. तो देखो, बॉडी से जो फाइबर्स निकल रहे हैं, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पैराइटल लोब्स को कनेक्ट करेंगे. ठीक है,
यहाँ से जो जेन्यू से जो फाइबर्स निकलेंगे ये क्या कर रहे हैं, दो फ्रंटल लोब को कनेक्ट करेंगे। स्प्लीनियम से जो निकल रहे हैं दो ऑक्सीपिटल लोब को कनेक्ट करेंगे, प्लस नीचे जो होता है टेम्पोरल लोब उसे भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है ब्रेन का और हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कॉर्पस कैलोसम कैसे दिखेगा, ऐसे। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, हमने यहाँ से उसको ऊपर से कट किया है, हॉरिजॉन्टली ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। हम उसको देखेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम। और यहाँ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं, देखो दिस इज बॉडी, बीच वाला पार्ट इज बॉडी। ये कनेक्ट करेगा दो पैराइटल लोब को। दिस पार्ट, ये देखो यहाँ बेंड हो रहा है, दिस वन इज जेन्यू। जेन्यू से देखो फाइबर्स जा रहे हैं फ्रंटल लोब की तरफ, दो फ्रंटल लोब को कनेक्ट करेंगे। वैसे दिस इज स्प्लीनियम, पोस्टीरियर हैंगिंग पार्ट, दिस इज स्प्लीनियम। यहाँ से जा रहे ऑक्सीपिटल और वहीं से नीचे जाएंगे टेम्पोरल की तरफ। क्लियर? ठीक है, अब ये जो फाइबर्स जा रहे हैं आपको दिख रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, these are like the forceps, किसके जैसे दिखते हैं, forceps। तो ये शॉर्ट जो फाइबर्स है जो आगे जेन्यू से जा रहे हैं फ्रंटल लोब तक, उन्हें हम कहते हैं फोर्सेप माइनर। और ये जो स्प्लीनियम से पीछे जाएंगे ऑक्सीपिटल की तरफ, इसे हम कहते हैं फोर्सेप मेजर। स्कीमेटिक डायग्राम में देखो, ये जो जेन्यू से आगे वाले फाइबर्स जा रहे हैं, स्वीपिंग फॉरवर्ड, these fibers from the genu sweeping forward into the frontal lobe, these fibers are called forceps minor, and these fibers from the splenium into the occipital lobe, these fibers are called forceps major। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ डार्क कलर दिख रहा है, ये देखो, ये तो व्हाइट मैटर है। यहाँ पे बीच में आपको सुपीरियर सरफेस पे कॉर्पस कैलोसम के सुपीरियर सरफेस पे ये कुछ डार्क कलर दिख रहा है। दिस डार्क कलर ऑफ ग्रे मैटर इज कॉल्ड इंडूसियम ग्रीसियम। दिस इज कॉल्ड इंडूसियम ग्रीसियम। स्पेलिंग, see the spelling here, इंडूसियम ग्रीसियम। ये डायग्राम एक बार फिर से समझते हैं। ये क्या है, कोरोनल सेक्शन है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, हमने सजाइटल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन लिया है। कोरोनल सेक्शन लेने के बाद इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। ठीक है, यहाँ पे भी कोरोनल सेक्शन आया है कॉर्पस कैलोसम का। इसके पहले वाले जो डायग्राम में देखा था वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन था, ये क्या है, कोरोनल सेक्शन है। तो कोरोनल सेक्शन में हमें कॉर्पस कैलोसम दिखा, उसका ये सुपीरियर सरफेस हुआ और ये इंफीरियर सरफेस हुआ। इंफीरियर सरफेस से हमें पता है सेप्टम पेलुसिडम आता है जो फॉर्निक्स से कनेक्टेड होता है। सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पे जो ग्रे मैटर का कलेक्शन दिखेगा that is called indusium grecium. The gray matter collected over the superior surface of corpus callosum is called indusium grecium. ठीक है, अब इस पे indusium grecium पे यहाँ पे क्या होता है, कुछ white matter के भी फाइबर्स होते हैं, बंडल्स होता है। ठीक है, वो white matter जो हो गए उन्हें हम कहते हैं मीडियल एंड लेटरल। ये 4 आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो मिड लाइन के पास है ये दोनों क्या है, राइट एंड लेफ्ट मीडियल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया, और उसके लेटरल ही जो है दिस आर लेटरल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राए। ठीक है, ये ग्रे मैटर है इंडूसियम ग्रीसियम। इस ग्रे मैटर में कुछ वाइट मैटर के भी बंडल्स दिखेंगे। मीडियल वाला जो बंडल होता है उसे मीडियल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया कहते हैं, और जो लेटरल वाला होता है उसे लेटरल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया कहते हैं। ऐसे मीडियल और लेटरल दो बंडल दोनों साइड में होंगे। ठीक है, राइट साइड में भी होंगे और लेफ्ट साइड में भी होंगे। और उनके ऊपर ये जो मीडियन फिशर है इस पे यहाँ पे होती है
सेरेब्रल आर्टरी, दोनों साइड की, राइट और लेफ्ट साइड की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया ये जो दिख रहा है क्या क्या है। पहले तो ये इंडूसियम ग्रीसियम है, उसके बाद में ये देखो ये एरो से दिखाया है, दिस वन इज मीडियल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राई, और यहाँ पे है लेटरल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राई। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वैसे। और फिर यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, यहाँ पे होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये फोर्सेप माइनर एंड दिस वन इज फोर्सेप मेजर। ये प्रैक्टिकल में आपको दिखाने के लिए बोलेंगे, जो सेक्शंस होते हैं ब्रेन के उसमें फोर्सेप मेजर और माइनर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। सो अगेन नाउ हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, थोड़ा डीपर सेक्शन है। इसमें देखो दिस इज बॉडी, दिस इज स्प्लीनियम, दिस वन इज जेन्यू, जेन्यू से जाएगा फोर्सेप माइनर, स्प्लीनियम से जाएगा फोर्सेप मेजर, और ये होगी बीच में बॉडी। ठीक है, अब देखो ये कॉर्पस कैलोजम के दोनों, ऑन ईदर साइड ऑफ कॉर्पस कैलोजम यू कैन सी द cavity here, cavity in the cerebral hemisphere, cavity of the telencephalon. This cavity is called lateral ventricle. corpus callosum के दोनों साइड में देखो cerebral hemisphere में जो cavity दिख रही है, this cavity is lateral ventricle. It is the cavity of telencephalon. ठीक है, this one. Now this cavity has बॉडी, ये जो बीच वाला पार्ट दिखेगा इसको कहते हैं बॉडी। इंटीरियरली इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, सो कॉर्पस कैलोजम का काम क्या होता है, इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बायलैटरल रिस्पॉन्स एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो राइट लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट का फंक्शन अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग डोमिनेंस होते हैं। ठीक है, तो राइट वन इज फॉर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्ट, क्रिएशन, फीलिंग्स, इमेजिनेशन। लेफ्ट वन इज एनालिटिक, लॉजिकल, आइडियाज, फैक्ट्स, मैथ्स, ट्रेनिंग। तो ये दोनों को जो है इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी चाहिए, ये किसके वजह से होती है, कॉर्पस कैलोजम की वजह से। ठीक है, तो अगर कॉर्पस कैलोजम इज कंजेनाइटली एब्सेंट और सेक्शन सर्जिकली, ठीक है, तो दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो जाएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। सो दे बिकम आइसोलेटेड and patient responds as if she or he has two separate brain. That condition is called split brain syndrome. ठीक है, तो दोनों जो होते हैं राइट और लेफ्ट डोमिनेंस वो अलग अलग होता है। राइट ब्रेन अलग कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन इज एनालिटिक मोर, राइट वन इज इमोशनल क्रिएटिविटी के लिए होता है। और इन दोनों के जो बीच का इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कौन करता है, कॉर्पस कैलोजम करता है फॉर बायलैटरल रिस्पॉन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। अगर कॉर्पस कैलोजम ही एब्सेंट हो गया, इफ इट इज कंजेनाइटली एब्सेंट और सेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दे बिकम आइसोलेटेड एंड पेशेंट रिस्पॉन्ड एज इफ शी और ही हैज टू सेपरेट ब्रेन एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया मंकीज में, तो उसमें क्या हुआ कि अगर इफ दिस monkeys they are trained to perform a task with one hand, they are unable to repeat the same act with the other hand. डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में ये जो कॉर्पस कैलोजम का जो डिफेक्ट होता है, दिस गोज अननोटिस।
डे टू डे एक्टिविटी में नहीं होता है। कुछ स्पेशल टेस्ट जब हम करते हैं तब हमें ये डिफेक्ट आइडेंटिफाई होता है। जब मंकीज़ में जो स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम वाले मंकीज़ थे या उनमें जब एक्सपेरिमेंट हुआ है इन चीज़ का, तो उसमें ये देखा गया है कि अगर मंकीज़ को एक हाथ से कोई स्किल परफॉर्म करने के लिए, आप कोई टास्क अगर उस टास्क के लिए अगर उन्हें ट्रेन किया गया है तो वो उसी हाथ से कर पाते हैं। दूसरे हाथ से अगर वो सेम टास्क उनको करने के लिए बोलते हैं तो दे आर अनेबल टू रिपीट द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस इज स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम। अब आते हैं लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल हमने देखा, कैविटी ऑफ टीलेंसिफेलॉन। ठीक है, दिस इज द कैविटी ऑफ टीलेंसिफेलॉन। इट इज प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सी हियर, ये है पोस्टीरियर व्यू और ये है एंटीरियर लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में देखो, ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, दिस इज this one, this C shaped is, this one is lateral ventricle. ये आपने पढ़ा है थर्ड वेंट्रिकल। this third ventricle then communicate with the cerebral aqueduct. this cerebral aqueduct फिर आएगा फोर्थ वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल then central canal of medulla and spinal cord. ठीक है, तो ऐसे CSF का फ्लो होता है। मैक्सिमम जो फ्लूइड होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होगा? इन दी लेटरल वेंट्रिकल। Approximately 7 to 10 ml CSF is produced in the lateral ventricle, and from here it then flows into the third ventricle through this foramen here, foramen of Monro. क्या है? foramen of Monro, called interventricular foramen. interventricular foramen, थर्ड वेंट्रिकल के आगे यहाँ होता है interventricular foramen, जिससे दो लेटरल वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल से। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरू से CSF आया थर्ड वेंट्रिकल से देन सेरेब्रल एक्वेडक्ट, देन फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन सेंट्रल कैनाल। ये CSF फ्लो हो गया। सो दिस वेंट्रिकल्स, अरे पोस्टीरियरली देखो, पोस्टीरियर हॉर्न। अच्छा हाँ, पहले लेटरल व्यू में देखो, ये हमारा C शेप का लेटरल वेंट्रिकल हो गया। और दिस लेटरल वेंट्रिकल हैज दिस एंटीरियर हॉर्न, अभी हमने देखा था एंटीरियर हॉर्न, बॉडी एंड पोस्टीरियर हॉर्न। और एक हॉर्न होता है जो टेम्पोरल लोब में होता है, यहाँ से बॉडी से जो आएगा नीचे, दिस इज इंफीरियर हॉर्न। दिस इज इंफीरियर हॉर्न। ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल, उसका एंटीरियर हॉर्न, बॉडी से ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा पोस्टीरियर हॉर्न, और बॉडी से टेम्पोरल लोब में आएगा इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, अब इसी को पोस्टीरियर व्यू में देखते हैं। पोस्टीरियरली हमें कैसे दिखेगा? ये दो लेटरल वेंट्रिकल है, ये मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फिशर, मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फिशर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। ये लेटरल वेंट्रिकल, ये पोस्टीरियर हॉर्न हो गया, और ये आगे जो जा रहा है टेम्पोरल लोब में, ये इंफीरियर हॉर्न हो गया। इंफीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न। देन सी हियर अगेन स्कीमेटिक डायग्राम जो आपकी बुक में है, ये C शेप लेटरल वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के आगे वाला जो पार्ट होता है वेंट्रिकल का, दैट इज एंटीरियर हॉर्न। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके स्प्लीनियम तक जो पार्ट होता है, दैट इज स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। दिस इज सेंट्रल पार्ट और बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। देन बॉडी से जो पोस्टीरियरली एक्सटेंशन होगा इनटू द ऑक्सीपिटल पोल, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर हॉर्न, और बॉडी से जो इंफीरियर एक्सटेंशन होगा इनटू टेम्पोरल लोब, इसे कहेंगे इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो जहाँ पे ये पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न, इसमें जो डाइवर्जेंस हो रहा है, ये पोस्टीरियर हॉर्न और ये इंफीरियर हॉर्न, बॉडी से ये पोस्टीरियर हॉर्न और ये इंफीरियर हॉर्न, ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं कोलैटरल ट्राइगोन। इसे कहेंगे ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पोस्टीरियर, इंफीरियर और सेंट्रल,
बॉडी, इनके बीच में जो ये डाइवर्जेंस के जहाँ ये डाइवर्जेंस हो रहा है वहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसे क्या कहेंगे? कोलैटरल ट्राइगोन। ठीक है। अगेन सुपीरियर व्यू है, सुपीरियर व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा? एंटीरियर हॉर्न, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के आगे एंटीरियर हॉर्न, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के पीछे अप टू दिस स्प्लीनियम इज बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, देन पोस्टीरियर हॉर्न and this one is inferior horn in the temporal lobe. ठीक है, दोनों साइड दिस थर्ड वेंट्रिकल हो गया, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, फॉर्निक्स हम पढ़ लिए, फॉर्निक के साथ हमने हिप्पोकैम्पल कमीशर पढ़ लिया था, कॉर्पस कैलोसम हमने पढ़ लिया। अब लेटरल वेंट्रिकल, ये देखो इसमें आइडेंटिफाई करो क्या क्या है। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर है, दिस वन इज स्प्लीनियम, दिस पोस्टीरियर हैंगिंग पार्ट इज स्प्लीनियम। ये क्या है? रोस्ट्रम। ये क्या है? जेन्यू। दिस इज ट्रंक and this one is splenium of corpus callosum, body and splenium of corpus callosum. ये हो गया fornix। ये lamina terminalis और ये क्या है? septum pellucidum. This one is septum pellucidum. ये देखो ये क्या है? सुपीरियर सरफेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, इंफीरियर सरफेस पे सेप्टम पेलुसिडम है, सुपीरियर सरफेस पे देखो क्या है? ये क्या है? कौन बताएगा ये क्या है? सुपीरियर सरफेस पे ये वेसल्स कौन सी है? Which cerebral artery? Very good. It is anterior. ठीक है, और यहीं पे क्या होगा? इंडूसियम, ग्रेसियम और उसी में मीडियल एंड लेटरल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्राया। ठीक है, तो ये सारे आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे। फिर हमने सेप्टम पेलुसिडम निकाल लिया वहाँ से, ये फॉर्निक्स है, ये कॉर्पस कैलोसम है, इनके बीच का हमने सेप्टम पेलुसिडम निकाल लिया। तो ये जो कैविटी दिख रही है आपको, दिस वन इज लेटरल वेंट्रिकल, दिस वन इज लेटरल वेंट्रिकल। ये बॉडी होगी, यहाँ आगे एंटीरियर हॉर्न, यहाँ पीछे जाएगा पोस्टीरियर हॉर्न और नीचे इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ कॉर्पस कैलोसम इन कोरोनल सेक्शन ये हमने देखा। ये सेप्टम पेलुसिडम है, ये फॉर्निक्स है, दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज स्ट्राया टर्मिनालिस, दिस इज थैलामोस्ट्रैटेड वेन, दिस वन इज थैलामस एंड दिस वन इज कोरोइड प्लेक्सस। अभी हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है ये सारी चीजें। कॉर्डेट न्यूक्लियस, caudate nucleus, it is a collection of gray matter, it is C-shaped collection of gray matter, it is a part of basal ganglia। कॉर्पस अगली क्लास में होगा आपका। it is a part of basal ganglia, it is a C-shaped collection of gray matter, it surrounds the thalamus and it itself is surrounded by lateral ventricle।
ये जो दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस है। कॉर्डेट न्यूक्लियस से क्या होता है? हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होता है, एंड दिस टेल एंड्स इनटू एमिग्डालॉइड बॉडी। टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड्स इनटू एमिग्डालॉइड बॉडी। ये जो सी शेप का दिख रहा है आपको, ये क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। दिस कॉर्डेट न्यूक्लियस सराउंड्स द थैलामस। ये जो रेड कलर में है, दिस इज थैलामस। तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस सराउंड्स द थैलामस एंड इट इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, ये कॉर्डेट येलो कलर में जो दिख रहा है, ये क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। हेड, बॉडी, टेल, एमिग्डालॉइड बॉडी, ये है टेल तक ही होगा कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस वन इज थैलामस। सो दिस वन सराउंड्स द थैलामस एंड इट इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय लेटरल वेंट्रिकल। ये क्या है? ये डॉटेड लाइन में दिखाया है, ये जो गैप है, ये क्या है? लेटरल वेंट्रिकल। दिस इज एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, बॉडी और ट्रंक ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, पोस्टीरियर हॉर्न, और ये इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस की न्यूक्लिया है आगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, अब उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी थी स्ट्राया टर्मिनालिस। एक हमने देखा था कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके बाद दूसरा टर्म आया था स्ट्राया टर्मिनालिस। अब स्ट्राया टर्मिनालिस क्या होते हैं? कनेक्शन फाइबर्स। कनेक्शन कहाँ से होता है? एमिग्डालॉइड बॉडी से। ये एंटीरियरली आर्च फाइबर्स connecting amygdaloid body with the anterior portion of hypothalamus। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है ये एमिग्डालॉइड बॉडी और एंटीरियर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। सेप्टल रीजन एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस को जो कनेक्ट करते हैं फाइबर्स, उन्हें कहते हैं स्ट्राया टर्मिनालिस। ये जो रेड कलर में दिख रहा है, दिस इज स्ट्राया टर्मिनालिस। याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ टर्म याद रखो, स्ट्राया टर्मिनालिस। इट इज रिलेटेड विद द इंस्टिंक्ट, फियर, रेज के लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। देन तीसरा नाम आया था थैलामोस्ट्राइटेड वेन। थैलामोस्ट्राइटेड वेन, ये थैलामो मतलब थैलामस और स्ट्राइटेड इज कॉर्पस स्ट्राइटम, जो बेसल गैंग्लियन का पार्ट होता है, कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, तो ये जो दिख रही है, ये है थैलामोस्ट्राइटेड वेन विच ड्रेन्स द थैलामस एंड कॉर्पस स्ट्राइटम ऑन ईदर साइड। अब ये दोनों साइड की थैलामोस्ट्राइटेड वेन क्या बनाएगी? इंटर सेरेब्रल वेन। इंटर सेरेब्रल वेन जो ड्रेन होगी इनटू ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन, और ये ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन along with the inferior sagittal sinus will drain into the straight sinus। ड्यूरल वेनस साइनस इसमें पड़ा होगा। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, सॉरी ये कोरोनल सेक्शन। इसमें आपको क्या दिखाया है? थैलामोस्ट्राइटेड वेन दिखाई है। थैलामोस्ट्राइटेड वेन क्या करती है? कॉर्पस स्ट्राइटम और थैलामस को ड्रेन करेगी दोनों साइड से। फिर ये बनाती है इंटरनल सेरेब्रल वेन। ये दोनों साइड की इंटरनल सेरेब्रल वेन ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन में ड्रेन होगी। ये ग्रेट सेरेब्रल वेन, अब ये देखो दिस व्यू, लेटरल व्यू, इसमें सुपीरियर सजाइटल साइनस है, ये इंफीरियर सजाइटल साइनस है। यहाँ पे देखो इंटरनल सेरेब्रल वेन्स, ये दो इंटरनल सेरेब्रल वेन ड्रेनिंग इनटू ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन।
सो ये ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन और इंफीरियर सजाइटल साइनस, एक इसमें ड्रेन हो रहा है स्ट्रेट साइनस एट द कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस। कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस यहाँ होता है, यहाँ से फिर ट्रांसवर्स साइनसेस स्टार्ट हो गए, ट्रांसवर्स साइनसेस इनटू सिग्मॉइड साइनस, सिग्मॉइड इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। ड्यूरल वेनस साइनसेस में पढ़ा होगा, याद है आप लोगों को? चलो नहीं याद आया कोई बात नहीं, यहाँ क्या याद रखना है, ये थैलेमोस्टाइटेड वेन जो होती है वो थैलेमस और कॉर्पस स्ट्रैटम को ड्रेन करेगी और किसमें अल्टीमेटली जाके ड्रेन होगी? स्ट्रेट साइनस, स्ट्रेट ड्यूरल वेनस साइनस। ठीक है, तो इट इज अ वेन ड्रेनिंग दी थैलेमस एंड कॉर्पस स्ट्रैटम, दैट इज थैलेमोस्टाइटेड वेन। ठीक है, तो जब हम कोरोनल सेक्शन लेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने देखा पार्ट्स देखे थे, लेटरल वेंट्रिकल के पार्ट देखे थे, कितने पार्ट देखे थे हमने? एंटीरियर हॉर्न देखा था, सेंट्रल पार्ट देखा था, पोस्टीरियर पार्ट देखा था और इंफीरियर हॉर्न देखा था। तो अब हम इन सबके कोरोनल सेक्शन लेके हम इसको स्टडी करेंगे, वेंट्रिकल्स के कोरोनल सेक्शन लेके उनकी बाउंड्रीज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम ये पहले एक कोरोनल सेक्शन लेते हैं जिसमें सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम जो होता है वहां से हम एक कोरोनल सेक्शन लेंगे। तो वो जो कोरोनल सेक्शन होगा वो कहाँ से जाएगा? ये सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोरोनल सेक्शन लेंगे ऐसा, ठीक है, तो ये किससे पास होगा? बॉडी ऑफ और द ट्रंक ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ से जेन्यू से लेंगे आगे ऐसे, तो ये किससे पास होगा? एंटीरियर हॉर्न ऑफ कॉर्पस, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ये यहाँ पे जो सजाइटल सेक्शन लेगी तो ये किससे पास होगा? एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। बॉडी से ले रहे हैं यहाँ से तो किससे पास होगा? बॉडी ऑफ और द ट्रंक ऑफ और द सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ से लेंगे पीछे स्प्लीनियम के यहाँ से लेंगे तो ये किससे पास होगा? पोस्टीरियर हॉर्न से। और हम पीछे और नीचे तक अगर सेक्शन लेते हैं कोरोनल सेक्शन तो वो किससे पास होगा? इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, तो पहला सेक्शन जब अगर हमें एंटीरियर हॉर्न स्टडी करना है तो हम कहाँ से लेंगे? ये जो रोस्ट्रम के नीचे ये दिख रहा है एंटीरियर कमीशर, एंटीरियर कमीशर। तो हम यहाँ से एक सेक्शन लेंगे पासिंग थ्रू द एंटीरियर कमीशर, तो हमें क्या मिलेगा? बाउंड्रीज ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अगर हम बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम यहाँ से बीच में से लेंगे, जहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोंद्रो जहाँ पे होगा, वहाँ से हम एक सेक्शन लेंगे पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम। तो ये किससे, ये हमें किसकी बाउंड्रीज दिखाएगा? सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। स्प्लीनियम से लेंगे पीछे से तो ये हमें क्या दिखाएगा? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। और हम पीछे और इंफीरियरली और उसको एक्सटेंड करेंगे एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। तो वो क्या दिखाएगा हमें? इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ट्रंक जो होता है, ट्रंक से हमने लिया है सेक्शन, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल।
सेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो ये मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फिशर, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। यहाँ पे क्या है, कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम की इंफीरियर सरफेस से सेप्टम पेलुसिडम, और यहाँ पे उसका नीचे फॉर्निक्स, ठीक है, फॉर्निक्स। देन फॉर्निक्स यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मुनरो। देन यहाँ पे दिस कैविटी इज थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड में क्या होता है, थैलेमस, ठीक है। अभी हमने देखा था कॉर्डेट न्यूक्लियस और देखा था स्ट्राया टर्मिनालिस एंड थैलेमोस्ट्राइटेड वेन, ठीक है। सो रूफ, तो सी ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, डॉटेड ब्लैक कलर में, दिस इज द कैविटी ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये क्या है, सेप्टम पेलुसिडम के दोनों साइड में ये क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। दिस इज रूफ एंड दिस इज फ्लोर। दिस इज मीडियल वॉल, ठीक है। इट इज समवॉट ट्रायंगुलर विथ रूफ, फ्लोर एंड मीडियल वॉल। सो मीडियल वॉल किससे बन रही है, सेप्टम पेलुसिडम। रूफ किससे फॉर्म हो रहा है, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम। फ्लोर किससे फॉर्म होगा, फ्लोर इट इज स्लोपिंग, इट इज फॉर्म फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड, दिस इज लेटरल, sorry, and this one is medial side. So from lateral to medial side, floor is formed by the body of caudate nucleus, stria terminalis, thalamostriated vein, then lateral part of this thalamus, and this is the choroid plexus covering the medial part of thalamus, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोर, स्लोपिंग फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, लेटरली बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनालिस, थैलेमोस्ट्राइटेड वेन, देन लेटरल पार्ट ऑफ थैलेमस, सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस, देन मीडियल पार्ट कवर्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सिस, ठीक है। ये सेक्शन है, कोरोनल सेक्शन लिया है हमने एट द लेवल ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, इस लेवल पे लिया है हमने। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दिस इज बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, सेप्टम पेलुसिडम, यहाँ पे दिस फ्लोर इट इज स्लोपिंग लेटरली, ये जो छोटा सा दिख रहा है, दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये डार्क कलर का ग्रे मास, दिस इज थैलेमस, ठीक है, दिस इज थैलेमस, ये दोनों साइड में थैलेमस है, और थैलेमस के ऊपर ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज कोरॉइड प्लेक्सस कवरिंग द सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल का ये कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। देन एंटीरियर हॉर्न, अब हम जो है एंटीरियर कमीशर के लेवल पे, जेन्यू के लेवल पे एक सेक्शन लेंगे, कोरोनल सेक्शन। तो हमें ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखेंगे, बीच में मीडियन लॉन्जिट्यूडनल फिशर, और यहाँ पे ये है कॉर्पस कैलोजम। विच पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम, जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोजम, जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। जेन्यू, फिर ये जेन्यू आगे आके क्या बनेगा, रोस्ट्रम, these are the rostrum of corpus callosum, ठीक है। जेन्यू में बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग होके ये आगे से बेंड होके पीछे फिर से क्या बनेगा, रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। देन दिस इज सेप्टम पेलुसिडम, दिस इज सेप्टम पेलुसिडम, एंड दिस इज अगेन द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। सो anterior horn has roof formed by this genu of corpus callosum, floor is formed by the
rostrum of corpus callosum. Anterior wall is formed whole by the genu of corpus callosum. Medial wall is formed by septum pellucidum, and lateral wall is formed by the caudate nucleus, head of caudate nucleus. ठीक है. Roof, floor, medial wall and lateral wall. और anterior जो उसका extension होता है up to the genu of corpus callosum. ये कोरोनल सेक्शन है. कोरोनल सेक्शन में अगेन दिस इज जेन्यू, सेप्टम पेलुसिडम, हेड ऑफ कॉडेट न्यूक्लियस. नीचे रोस्ट्रम आएगा, ये भी दिख रहा है रोस्ट्रम. ठीक है. जेन्यू बॉडी यहाँ पे एंड हुई है और जेन्यू स्टार्ट हुआ है. सो सम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, देन जेन्यू फ्रॉम द एंटीरियर वॉल, फ्लोर फ्रॉम द फ्लोर बाय द रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोजम, medial wall by the septum pellucidum and lateral wall by the head of caudate nucleus. ठीक है. ये डार्क कलर का दिख रहा है caudate nucleus. And this cavity is anterior horn of lateral ventricle. And posterior horn. Posterior horn में again जब हम coronal section देखते हैं तो हमने एक साइड का ही anterior posterior horn देखा है. Posterior horn में roof, lateral wall and floor. Roof, lateral wall and floor. ठीक है. अगर ये quadrangular है, this is roof, ये lateral wall होगी और ये floor होगा और यहाँ पे medial wall होगी. ठीक है. ये exactly ऐसा नहीं है shape wise, ये आपको थोड़ा imagine करना होगा. Roof, lateral wall and floor, it is formed by tapetum. It is formed by टपेटम. अब टपेटम क्या होता है? टपेटम क्या होता है? These are curtain-like projection of corpus callosum. यहाँ पे जैसे corpus callosum है, splenium है यहाँ पे. This posterior hanging part, suppose यहाँ पे है corpus callosum का, that is splenium. ठीक है. स्प्लीनियम से कुछ फाइबर्स जो पीछे जा रहे हैं उनको हम कहते हैं फोर्सेप मेजर. कुछ फाइबर्स लाइक अ कर्टन यहाँ पे ऐसे हैंग हो रहे हैं साइड में, उन्हें कहते हैं टपेटम. ठीक है. यहाँ पे स्प्लीनियम होगा, बीच में यहाँ स्प्लीनियम होता है मिड लाइन में. स्प्लीनियम से कुछ फाइबर्स जो पीछे जाएंगे पोस्टीरियर हॉर्न में, दिस ऑक्सीपिटल लोब में, उन्हें कहते हैं फोर्सेप मेजर. कुछ फाइबर्स ऐसे लेटरली यहाँ पे कर्टन लाइक ऐसे हैंग हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं टपेटम. सो दिस टपेटम फॉर्म्स रूफ, लेटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न. ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये क्या है? पोस्टीरियर हॉर्न. अब मीडियल वॉल जो होती है, मीडियल वॉल एक तो ये दिख रही है आपको, ये मीडियल वॉल है, ये मीडियल वॉल है. बट ये मीडियल वॉल स्ट्रेट नहीं है, लाइन में नहीं है. इट शोज टू एलिवेशंस. ये एक एलिवेशन है और ये दूसरा एलिवेशन है. सो दिस फर्स्ट एलिवेशन इज ड्यू टू द फोर्सेप मेजर which is called bulb of posterior horn, and the second elevation is due to the calcarine sulcus. Calcarine sulcus होता है occipital lobe में. So the second elevation is due to the calcarine sulcus. This is called calcar avis. This is called calcar avis. ठीक है. So this is sagittal section showing the cavity of posterior horn of lateral ventricle. This posterior horn of lateral ventricle, it has roof, lateral wall, floor and medial wall. Roof, lateral wall and floor, it is formed by tapetum. These are curtain-like projection of splenium of corpus callosum. Then medial wall shows two bulgings. The first one is due to the forceps major fibers called bulb of posterior horn, and the second bulging is due to the calcarine sulcus which is called calcar avis. ठीक है. तो ये हो गया posterior horn.
अब आते हैं इंफीरियर हॉर्न पे। इंफीरियर हॉर्न को हमें देखना है तो हमें इंफीरियर कॉलिकुलस जो होता है मिड ब्रेन का, उस लेवल पे सेक्शन लेना होगा, कोरोनल सेक्शन। जब हम कोरोनल सेक्शन लेते हैं तो हमें क्या दिखता है, टेम्पोरल लोब में हिप्पोकैम्पस होता है, देन कोलैटरल सल्कस होता है, ठीक है, एक हिप्पोकैम्पल गायरस मिलेगा, उसके बाद में यहाँ हमें मिलेगा कोलैटरल सल्कस, ठीक है। तो अभी इंफीरियर हॉर्न में क्या होगा, जब हम कोरोनल सेक्शन देखते हैं तो हमें इंफीरियर हॉर्न, एक्चुअली इंफीरियर हॉर्न इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दी हॉर्न्स। लेटरल वेंट्रिकल का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है इंफीरियर हॉर्न, जो टेम्पोरल लोब में होता है। बट जब हम कोरोनल सेक्शन देखते हैं तब हमें इट अपीयर्स ट्रांसवर्स स्लिट लाइक। जब हम सेक्शन लेते हैं तो ये कैसे हमें दिखता है, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक। अब ट्रांसवर्स स्लिट है मतलब क्या होगा, एक तो रूफ होगा और दूसरा होगा फ्लोर। ठीक है, सो इन कोरोनल सेक्शन इंफीरियर हॉर्न appears as a transverse slit presenting roof and floor. So roof is formed by again जो टपेटम था, ऊपर से जो आ रहे थे स्प्लीनियम के फाइबर्स, वो क्या फॉर्म करेंगे, रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न। ठीक है, ये रूफ हो गया। तो रूफ का जो लेटरल पार्ट हो गया वो किससे बन रहा है, टपेटम का, और जो मीडियल पार्ट है वो किससे बन रहा है, स्ट्राया टर्मिनालिस एंड टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। स्ट्राया टर्मिनालिस एंड टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड टपेटम forms the roof of inferior horn. अब फ्लोर किससे बन रहा है, फ्लोर अगेन फ्लोर शोज टू एलिवेशंस। फ्लोर पे दो एलिवेशंस हो गए, एक हिप्पोकैम्पल एलिवेशन हिप्पोकैम्पस के वजह से, और दूसरा कोलैटरल एमिनस ड्यू टू कोलैटरल सल्कस। पोस्टीरियर हॉर्न में कैल्कराइन सल्कस था, इंफीरियर हॉर्न में कोलैटरल सल्कस की वजह से। ठीक है, तो रूफ में दो एलिवेशंस हो गए, पहला एलिवेशन होगा ड्यू टू द हिप्पोकैम्पस और दूसरा होगा ड्यू टू द कोलैटरल सल्कस। ठीक है, दो बल्जिंग्स। फिर यहाँ पे जो होगा दिस हिप्पोकैम्पल गायरस, इट इज कवर्ड बाय कोरॉइड फिशर। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कोरॉइड फिशर, और इसके अंदर होगा कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड फिशर के अंदर क्या आता है, कोरॉइड प्लेक्सस। हम देखते हैं कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अगेन इस दिखाया है, ये कुछ पोर्शन कट किया है ब्रेन का, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में दिखाया है। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, पेस हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस से ये जो फाइबर्स जा रहे हैं ये क्या है, क्रूरा ऑफ फॉर्निक्स और पोस्टीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, उनके बीच में ये जो फाइबर्स है ट्रांसवर्स फाइबर्स, कमीशर ऑफ फॉर्निक्स। This is commissure of fornix, then body of fornix, and then columns of fornix. ठीक है, and this is caudate nucleus, head of caudate nucleus, then चलिए इतना सब कुछ नहीं, आपको पेस हिप्पोकैम्पस आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, पेस हिप्पोकैम्पस आइडेंटिफाई कर देना और फॉर्निक्स आइडेंटिफाई कर देना। वही अगेन जेन्यू, स्प्लीनियम, सेप्टम पेलुसिडम। यहाँ से देखो ये क्या दिख रहा है, अंदर दिख रहा है ये हिप्पोकैम्पस, ये दिख रहा है हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस से ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ये क्या है, फॉर्निक्स। फॉर्निक्स सेप्टम पेलुसिडम से अटैच हो गए फॉर्निक्स। ठीक, ये दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ पे,
This black color is choroid plexus, tuft of capillaries, choroid plexus. ये क्या है? एंटीरियर हॉर्न. ये क्या है? सेंट्रल पार्ट. और ये क्या है? पोस्टीरियर हॉर्न. और ये पोस्टीरियर हॉर्न के आगे ये क्या है? इंफीरियर हॉर्न. एंटीरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट, पोस्टीरियर हॉर्न और ये इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. यहाँ पे ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये क्या है? कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. ये मेनली किसमें होता है? सेंट्रल पार्ट में होगा, इंफीरियर हॉर्न में होगा और कुछ पार्ट हमें पोस्टीरियर हॉर्न में भी दिखेगा. मेनली कहाँ होता है? कोरॉइड प्लेक्सस सेंट्रल पार्ट में होगा और इंफीरियर हॉर्न में होगा. तो ये सेंट्रल पार्ट और इंफीरियर हॉर्न के बीच में ये थोड़ा सा हमें पोस्टीरियर हॉर्न में भी कोरॉइड प्लेक्सस दिखेगा. ठीक है. सो दिस इज पोस्टीरियर हॉर्न. Posterior horn, this is section at the level of inferior colliculus, जिसमें ये मिड ब्रेन है. inferior colliculus के लेवल पे सेक्शन लिया है. ये आपको स्प्लीनियम दिखेगा. स्प्लीनियम से ये पीछे जाते हुए फोर्सेप मेजर दिखेगा. ठीक है. स्प्लीनियम से ये देखो फाइबर्स जा रहे हैं वाइट कलर के. ये टपेटम, स्प्लीनियम से दे जा रहे हैं फाइबर्स. देन दिस वन इज पोस्टीरियर हॉर्न और दिस इज टेम्पोरल लोब. ये टेम्पोरल लोब है. तो ये टेम्पोरल लोब में हमें दिखेगा इंफीरियर हॉर्न. ये टेम्पोरल लोब है. टेम्पोरल लोब में हमें क्या दिख रहा है? इंफीरियर हॉर्न और ये पीछे पोस्टीरियर हॉर्न. तो देखो पोस्टीरियर हॉर्न में और इंफीरियर हॉर्न में ये हमें क्या दिख रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस. मेनली किसमें होता है? इंफीरियर हॉर्न में और सेंट्रल पार्ट में. ठीक है. सो कोरॉइड प्लेक्सस और फिशर क्या है? अच्छा, ये कैसे कोरॉइड प्लेक्सस किसकी ब्रांचेस से बनता है? कोरॉइड प्लेक्सस बनता है एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर कोरॉइडल आर्टरी. एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी ब्रांच ऑफ anterior choroidal artery and posterior choroidal artery. So anterior choroidal artery, it is a branch of internal carotid artery and posterior choroidal artery is a branch of posterior cerebral artery. तो ये देखो यहाँ दिस इज कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम के पीछे यहाँ पे गैप दिख रही है आपको. ये ऊपर एक गायरस है, इसके और कॉर्पस कैलोसम के बीच में यहाँ पे जो गैप दिखेगी, सी शेप की गैप दिखेगी, दिस इज कोरॉइड फिशर. दिस इज कोरॉइड फिशर. सी शेप का कोरॉइड फिशर. यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एंटीरियर कोरॉइडल ब्रांचेस और पोस्टीरियर कोरॉइडल आर्टरी की पोस्टीरियर कोरॉइडल ब्रांचेस इसमें से जाएगी अंदर थ्रू दिस कोरॉइडल फिशर एंड फॉर्म्स द कोरॉइड प्लेक्सस. ये कॉर्पस कैलोसम और ये ऊपर जो गायरस है, इनके बीच में ये गैप है. दिस इज कॉल्ड कोरॉइड फिशर. ये दिख रहा है आपको? दिस इज कोरॉइड फिशर सी शेप में. तो यहाँ से एंट्री होगी एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर कोरॉइडल आर्टरी. इनकी एंट्री होगी. इनकी जो ब्रांचेस है, कैपिलरीज है, उनकी एंट्री होगी. दे फॉर्म्स दी कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है. अगेन अगर ये जो कम्युनिकेशन है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का जो कम्युनिकेशन है ये ब्लॉक हो गया तो इट रिजल्ट्स इन इंटरनल हाइड्रोकेफेलस. दिस रिजल्ट्स इन इंटरनल हाइड्रोकेफेलस. देखा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CSF जो वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होता है वो कहाँ? ऑप्टिस वेंट्रिकल में होगा, लेटरल वेंट्रिकल में अबाउट 7 to 10 ml. ठीक है. अगर CSF फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो दैट रिजल्ट्स इन इंटरनल और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस, कॉमन इन सीन इन इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन. और उसका क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं इंटरनल हाइड्रोकेफेलस के?
disproportionately large size of head, widely separated cranial sutures, enlarged and tense anterior frontal, thin scalp with dilated veins, bossing of forehead, then retraction of lid, and setting sun appearance of the eyes. सेटिंग सन अपीयरेंस ऑफ द आइज, ये आपने मेनिंजेस और CSF फ्लो में ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लेटरल वेंट्रिकल एंड कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम पे और लेटरल वेंट्रिकल पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी के जो टाइप ऑफ वाइट मैटर उसको इन्यूमरेट करने के लिए पूछ सकते हैं। कमीशर फाइबर्स कौन से होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स इन्यूमरेट करने के लिए पूछ सकते हैं। प्रोजेक्शन फाइबर्स में इंटरनल कैप्सूल इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन फाइबर का और एक एग्जांपल होता है दिस फॉर्निक्स जो हमने देखा है। तो फॉर्निक्स वाइवा के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्निक्स होता क्या है, उसके कनेक्शन भी पूछेंगे आपको। देन इंटरनल कैप्सूल पे क्वेश्चन आएगा, लेटरल वेंट्रिकल पे क्वेश्चन आएगा और कॉर्पस कैलोजम पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिवाइज करना है या ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो हमने पहले देखा व्हाइट मैटर, देखा हमने व्हाइट मैटर क्या होता है, बंडल ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग दी CNS, different parts of CNS with each other. So depending upon their connection, they are classified into 3 types. कौन से हो गए, association fibers, commissural fibers and projection fibers. Association fibers क्या करते हैं, association fibers क्या करते हैं, जो different parts of कॉर्टेक्स होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, विद इन द सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। एसोसिएशन फाइबर्स आर इंट्रा हेमिस्फीयर। एसोसिएशन फाइबर्स कैसे होते हैं, इंट्रा हेमिस्फीयर, एक ही सेम हेमिस्फीयर में जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज को, उसको एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। उनके 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट आर्कुएट फाइबर्स जो एडजेसेंट गायरा को कनेक्ट करेंगे। लॉन्ग होते हैं वो अलग अलग लोब्स को कनेक्ट करेंगे, फ्रंटल लोब को टेम्पोरल के साथ, फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल के साथ, ठीक है। तो वो अलग अलग एरियाज कनेक्ट करेंगे विद इन द सेम हेमिस्फीयर। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स। उनका एग्जांपल था अनसिनेट फेसिकुलस, सिंगुलम, देन इंफीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, फ्रंटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल फेसिकुलस, ठीक है। देन कमीशर फाइबर्स होते हैं जो इंटर हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेंगे, इंटर हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल एरियाज ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कमीशर फाइबर्स क्या करते हैं, आइडेंटिकल एरियाज को कनेक्ट करते हैं। जैसे फ्रंटल लोब का पार्ट दूसरे फ्रंटल लोब के पार्ट के साथ कनेक्ट होगा, ऑक्सीपिटल का दूसरे ऑक्सीपिटल के साथ कनेक्ट होगा। एग्जाम्पल है इसका कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम के अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कमीशर, हिप्पोकैम्पल एंड हैबियुलर। कॉर्पस कैलोजम हमने देखा, उसका जो आगे वाला जेन्यू वाला पार्ट फ्रंटल लोब को कनेक्ट करता है, बॉडी वाला पैराइटल लोब को, स्प्लीनियम जो होगा वो किसको कनेक्ट करता है, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब को, ठीक है। उसके आगे जेन्यू से जो फाइबर जाते हैं फोर्सेप माइनर, स्प्लीनियम से जो फाइबर जाते हैं उसे कहते हैं फोर्सेप मेजर, ठीक है। देन उसके बाद आता है एंटीरियर कमीशन। तो कॉर्पस कैलोजम सारा न्यूरोकॉर्टेक्स कनेक्ट करता है एक्सेप्ट लोअर एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। लोअर एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब वो कौन कनेक्ट करेगा, एंटीरियर कमीशन। ये वाली डायग्राम ये देखी थी, ये रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। यहाँ पे होता है लैमिना टर्मिनालिस, लैमिना टर्मिनालिस। तो ये जो लोअर एंड होगा लैमिना टर्मिनालिस के, वहाँ पे ये जो लोअर पार्ट होगा, यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं जो 2 टेम्पोरल लोब के लोअर एंड एंटीरियर पार्ट को कनेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीरियर कमीशर। एंटीरियर कमीशर। वैसे पीछे पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड का सुपीरियर स्टॉक होता है और इंफीरियर स्टॉक होता है। तो इंफीरियर स्टॉक पे, यहाँ पे इंफीरियर स्टॉक के थ्रू
दो एरिया कनेक्ट होगा। एक होता है हैबिनुलर कमीशर होता है, ठीक है, और एक होता है पोस्टीरियर कमीशर। तो जो सुपीरियर स्टॉक होता है, सुपीरियर स्टॉक में जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे, बंडल ऑफ फाइबर्स विच कनेक्टेड टू हैबिनुलर न्यूक्लियर ऑन ईदर साइड ऑफ सुपीरियर स्टॉक, उसको कहते हैं हैबिनुलर कमीशर। इसके सिर्फ नाम ही याद रहे तो चलेगा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही पोर्शन बचा था इसलिए बता रही हूँ, अगर डिटेल में नहीं जाना है कोई बात नहीं है, याद नहीं रहता है, ठीक है। बस हमारा इस चैप्टर में इतना ही पोर्शन बचा था इसलिए इसको सो पोस्टीरियर कमीशर जो होते हैं यहाँ पे ये क्या करेंगे, जो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, मिड ब्रेन का सुपीरियर कॉलिकुलाई होता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई और प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं दोनों साइड के, सुपीरियर कॉलिकुलाई और प्रीटेक्टल न्यूक्लिया ऑफ मिड ब्रेन, ये दोनों साइड के कनेक्ट करेंगे पोस्टीरियर कमीशर, जो कहाँ होता है, इंफीरियर स्टॉक ऑफ पीनियल ग्लैंड। सुपीरियर स्टॉक पे जो फाइबर्स हो गए, ट्रांसवर्स फाइबर्स, कमीशर फाइबर्स, कनेक्ट दी हैबिनुलर न्यूक्लिया ऑफ टू साइड, हैबिनुलर न्यूक्लिया ऑफ टू साइड, वो कहाँ से पास होते हैं, सुपीरियर लैमिना ऑफ स्टॉक ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हिप्पोकैम्पल हमने देखा था, ये फॉर्निक्स होता है, दो फॉर्निक्स का जो पोस्टीरियर कॉलम और क्रूरा जिसको बोलते हैं, उनके बीच के जो ट्रांसवर्स जो कमीशर फाइबर्स होते हैं उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पल कमीशर। वो हिप्पोकैम्पल कमीशर दो साइड का हिप्पोकैम्पस कनेक्ट करता है, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये हो गया कमीशर फाइबर्स। एग्जाम्पल हमने देखा था कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम हमने डिटेल में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट करता है इंटरहेमिस्फेरिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बायलैटरल रिस्पॉन्स एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इसके पार्ट्स देखे थे, रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लीनियम क्या क्या कनेक्ट करता है वो देखा था, उसका रिलेशन देखा था, सुपीरियर सरफेस पे इंड्यूसियम, ग्रीसियम और मीडियल एंड लेटरल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्राया होते हैं, इंफीरियर सरफेस एंड एंटीरियर कोरोइडल एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती है। Posterior surface, this inferior surface connected with the fornix with this septum pellucidum। fornix क्या होता है वो भी हमने देखा था, प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं जो हिप्पोकैम्पस को मेमोरी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड का ब्रेन क्रिएटिव होता है, इमोशनल होता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन जो होता है वो एनालिटिक होता है, लॉजिकल होता है। तो ये दोनों को कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कोऑर्डिनेट करता है, दोनों को कौन कनेक्ट करता है, कॉर्पस कैलोजम। तो अगर कॉर्पस कैलोजम एब्सेंट है या सेक्शन हो गया है उसकी वजह से पेशेंट बिहेव कैसे करेगा, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में ये न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट हमें आइडेंटिफाई नहीं होंगे, बट अगर हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये सेक्शन हो जाता है तो पेशेंट विल बिहेव as if he or she has two separate brains, so that condition is called split brain syndrome, ठीक है ना। जब मंकी में ये टेस्टिंग की है, जब मंकी इसको बोला है एक हाथ से कोई काम सिखाया है और दूसरे हाथ से सेम काम अगर करने के लिए बोला है तो दे आर अनेबल टू रिपीट दिस। उसके बाद हमने देखा लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल कैविटीज ऑफ टीलेंसेफेलॉन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होती है। उसके पार्ट्स होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के आगे वाला पार्ट होता है एंटीरियर हॉर्न, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से स्प्लीनियम तक का पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, और सेंट्रल पार्ट से जो ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा उसे कहते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, और सेंट्रल पार्ट से जो टेम्पोरल लोब में जाएगा उसे कहते हैं इंफीरियर हॉर्न। इनके हमने रिलेशन देखे थे। अब ये दोनों जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थर्ड वेंट्रिकल से किससे कनेक्ट होते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो, इंटरवेंट्रिकुलर जो फोरामेन होता है फोरामेन ऑफ मोनरो, उससे वो कनेक्ट होते हैं। ये जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, उसमें अप्रोक्सीमेटली ईच वेंट्रिकल में 7 to 10 ml ऑफ CSF प्रोड्यूस होता है, जो थर्ड वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। फिर हमने अलग अलग सेक्शंस लेके ये पढ़ा था, इनके रिलेशंस पढ़े थे हमने। एंटीरियर हॉर्न के लिए हम एंटीरियर कमीशर से सेक्शन लेंगे,
देन सेंट्रल पार्ट अगर हमें पढ़ना है लेटरल वेंट्रिकल का, तो हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो होता है उस लेवल पे सेक्शन लेंगे। फिर अगर हमें स्प्लीनियम से सेक्शन लेंगे तो हम पोस्टीरियर हॉर्न स्टडी करेंगे, और जब वो जो सेक्शन होगा वो इंफीरियरली एक्सटेंड करेंगे, इंफीरियर कॉलिकुलस तक जब हम एक्सटेंशन करेंगे तो हम इंफीरियर हॉर्न स्टडी करेंगे। इसके बाद में हमने बाउंड्रीज देखी थी सेंट्रल पार्ट की। रूफ ट्रायंगुलर होता है, रूफ फॉर्म होगा कॉर्पस कैलोसम से, मीडियल वॉल सेप्टम पेलुसिडम से, फ्लोर में बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनालिस, थैलेमोस्ट्राटेड वेन एंड थैलेमस covered by choroid plexus of third ventricle। उसके बाद में एंटीरियर हॉर्न में बॉडी, रोस्ट्रम, फॉर्म रूफ एंड फ्लोर। एंटीरियर वॉल जो होती है वो जेनु से फॉर्म होगी, मीडियल वॉल जो होगी सेप्टम पेलुसिडम से फॉर्म होगी, और इसकी लेटरल वॉल कॉर्डेट न्यूक्लियस। पोस्टीरियर हॉर्न में अगेन रूफ, लेटरल वॉल एंड फ्लोर टपेटम से फॉर्म होगा। देन मीडियल वॉल होती है, उसमें दो बल्जिंग्स होती है ड्यू टू फोर्सेप मेजर के फाइबर्स, बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, और कैल्केराइन सल्कस के वजह से जो एलिवेशन होगा दैट इज कैल्कर एविस। सिमिलरली इंफीरियर हॉर्न इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल दी हॉर्न्स, पर जब हम सेक्शन लेते हैं कोरोनल सेक्शन, सो इट अपीयर्स एज अ ट्रांसवर्स स्लिट हैविंग रूफ एंड फ्लोर। तो जो रूफ होता है, लेटरल पार्ट ऑफ रूफ इज टपेटम, मीडियल पार्ट इज टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड स्ट्राया टर्मिनालिस। इसका जो फ्लोर होगा, फ्लोर किससे फॉर्म होता है? फ्लोर एक होगा हिप्पोकैम्पस से और दूसरा कोलैटरल एमिनेंस। कोलैटरल सल्कस की वजह से एलिवेशन होगा कोलैटरल एमिनेंस, एंड हिप्पोकैम्पस के वजह से जो एलिवेशन होगा उसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पल एलिवेशन। ठीक है, और इंफीरियर हॉर्न और सेंट्रल पार्ट में हमें मिलता है कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस किससे बनता है? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइडल आर्टरी, इंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो अगर ये सीएसएफ फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा? कम्युनिकेटिंग और इंटरनल हाइड्रोकेफेलस, इसमें ये सारी साइंस दिखेंगी। बस्टिंग ऑफ फोरहेड, डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज साइज ऑफ हेड, वाइडली सेपरेटेड क्रेनियल सूचर्स, एनलार्ज एंटेंस, इंटीरियर फ्रंटानेल, थिन स्कैल्प विद डायलेटेड वेन्स, रिट्रैक्टेड लिड एंड सेटिंग सन अपीयरेंस ऑफ द आई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अगली क्लास जो मेरी होगी उसमें हम प्रोजेक्शन फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए, सो हैव अ गुड टाइम, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपकी एग्जाम प्रीपोन भी हो सकती है, इंटरनल असेसमेंट 18 से मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है, ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक, चलो, टेक केयर।